Good morning, everyone. Today, in this video, I am going to teach you mathematics of class 7, a new chapter of geometry properties of triangle. At first, what is triangle? When three non-collinear points A, B, C and joined A, B, B, C and AC is the formation of triangle. Definition: a closed figure bounded by three line segment is called triangle, in which point A, B and C is the vertices of triangle, and AB line segment AB, BC and AC is the sides of triangle. Now, types of triangle. Based on side, there are three types of triangle. Based on sides. First, equilateral triangle. Equilateral triangle. A triangle having all sides are equal is called equilateral triangle. In triangle ABC, sides AB equal to BC equal to AC. Second, isosceles triangle. A triangle having any two sides are equal is called isosceles triangle. In triangle ABC, in which sides AB equal to AC. Third, a scalene triangle. A scalene triangle. A triangle having all sides are different length is called a scalene triangle. In triangle ABC, sides AB not equal to BC not equal to AC. There are three types of triangle based on angles. Based on angles. First, acute triangle. Acute triangle. A triangle each of which angles measure less than 90 degree. Acute angle triangle. In triangle ABC, angle A equal to angle B equal to angle C less than 90 degree. Second, right angle triangle.
A triangle whose one angle measure 90 degree. In triangle ABC, in which angle B equal to 90 degree. And third, obtuse triangle. A triangle measured one angle greater than 90 degree. A angle greater than 90 degree 100 हो सकता है, 90 डिग्री एबव, तो हम उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। इसको क्लीन करते हैं। Theorem first. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. Theorem. The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। प्रूफ करना है थ्योरम को, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एट फर्स्ट एक ट्रायंगल का हम फॉर्मेशन करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी, प्रूफ यहां कंस्ट्रक्शन एक डालेंगे। कंस्ट्रक्शन गिवन में दिया हुआ है, ए ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। टू प्रूव एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी ए डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम डालते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया था ए बी सी, कंस्ट्रक्शन में ड्रो ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू पॉइंट ए। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ हम कर रहे हैं पी क्यू, और पॉइंट ए से हुआ पासिंग किया है। प्रूफ करना है हमको एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ में हम चलते हैं। पी ए क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, और ए लाइन पैरेलल है। हम कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं ये लाइन पी क्यू, तो यहां हो जाएगा पी क्यू पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल पी
ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। इसी प्रकार फिर हम इधर से चलेंगे। अगेन PQ पैरेलल BC and AC is transversal line। तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट हो गया। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAQ। ये भी हो गया अल्टरनेट एंगल। नाउ अब चलते हैं PAQ इज a straight line। तो एंगल PAQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस एंगल में एंगल PAB प्लस एंगल ABAC प्लस एंगल QAC या CAQ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पर PAB इक्वल टू है एंगल ABC, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो PAB इक्वल टू है ABC, तो एंगल ABC प्लस BAC का BAC दे दिए, प्लस एंगल CAQ, यहाँ पर CAQ इक्वल टू ACB का एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। अब एक्सरसाइज हम चलते हैं 15A। एक्सरसाइज 15A। In a triangle ABC, if angle A 72 and angle B 63, find angle C। In triangle ABC, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, given in a triangle ABC in which angle A equal to 72 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 63 डिग्री, ये दिया हुआ है। फाइंड निकालना एंगल C। ये दिया हुआ है 72 डिग्री, ये दिया हुआ है 63 डिग्री, और ये एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे सोल्व में, लिखेंगे we know that sum of all angles of a triangle B 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 72 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करते हैं, 135 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, इसका साइन पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3 a ratio 2।
तो यहां पर हम रेशियो मान लेंगे, लेट रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल dx। तो यहां 4:3:2 है, तो एक हो गया एक एंगल, फर्स्ट एंगल 4x, सेकेंड एंगल 3x और एक 2x, थर्ड। We know that sum of all angles of a triangle be 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू बाई 9 20 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 4 इंटू 20 बराबर 80 डिग्री हो गया। सेकेंड 3 इंटू 20 60 डिग्री, एंड थर्ड एंगल 2 इंटू 20 डिग्री इक्वल टू 40। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 7 बता देते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ इक्वल एंगल। 7 का क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल शो दिया हुआ है 100 डिग्री। एक ट्रायंगल ABC मान लिए, इसमें एंगल एक जो है 100 डिग्री दिया हुआ है और 2 एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ लेट मान लेंगे, लेट इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल BX। तो हो जाएगा यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 1 डिग्री, 180 डिग्री। A 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, x इक्वल टू 80 डिग्री बाई 2 40 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 40। आंसर हो जाएगा। इस तरह से 8 भी बन जाएगा, 9। 10 एक क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रायंगल ABC if 2 angle A equal to 3 angle B equal to 6 angle C दिया हुआ है गिवन में, इन ट्रायंगल ABC में 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, ये दिया हुआ है। फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये निकालना है। तो हम चलते हैं 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। तो यहाँ पर लेट 2 एंगल A सॉल्व में लिखेंगे, 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू x। हमने मान लिया, तो 2 एंगल A इक्वल टू x, इसलिए एंगल A इक्वल टू x बाई 2, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको।
देयरफॉर इसी प्रकार 3 एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू एक्स बाई 3, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स, एंगल सी इक्वल टू एक्स बाई 6, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। 3 इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब एडिंग कर देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन ए ट्रायंगल ए बी सी में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी 180 डिग्री। तो यहां पर करेंगे एडिंग इक्वेशन 1, सेकेंड एंड थर्ड। बी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 180 डिग्री। तो यहां पर हो गया, ये जानते हैं। अब एडिंग करते हैं इसको। एंगल ए बराबर एक्स बाई 2, एंगल बी इक्वल टू एक्स बाई 3, एंगल सी इक्वल टू एक्स बाई 6, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 6। यहाँ पर है ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री दे दिए, इक्वल टू एलसीएम इसका 6 हो गया, 3x प्लस 2x प्लस x, तो हो गया 6x बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए निकाल लेंगे। एंगल ए इक्वल टू है x बाई 2 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री हो गया। एंगल बी इक्वल टू x बाई 3 60 डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल टू बाई 6 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 12 भी इसी प्रकार 12 को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक इवन फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी डीई पैरेलल बीसी है, ए 65 डिग्री और बी 55 डिग्री दिया हुआ है। इसमें एडीई निकालना है, एडीई ए एंगल निकालना है, एईडी ए एंगल निकालना है और एंगल सी ए निकालना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी 180। ए 65 प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 इक्वल टू 60। तो ए एंगल तो हमें 60 डिग्री आ गया। अब we know that two parallel line L and M and transversal line T intersect at point O and P, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 corresponding एंगल। तो यहाँ भी एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एडीई ए दोनों एंगल इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग से। तो ए बी सी 55 डिग्री इक्वल टू एंगल ए डी ए निकल जाएगा। इसी तरह से 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से।
नेक्स्ट 13 नंबर, इसमें एस या नो देना है। कैन ए ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल? एक ट्रायंगल में कभी हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल भी 180 ही होता है। टू ऑब्ट्यूज एंगल? नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए यह भी नहीं हो पाएगा, नो लिखेंगे इसमें। टू एक्यूट एंगल्स ये होंगे, इसमें एस देंगे। तो इस तरह से 13 को कंप्लीट कर लेंगे। 14 भी एस या नो करना है और 15 को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन, उसमें एक्यूट एंगल हो सकता है, जो रिमेनिंग एंगल बचता है वो एक्यूट ही होता है। जैसे कोई राइट एंगल हमने ले लिया ए बी सी और इसमें एंगल भी 90 है, तो रिमेनिंग एंगल ए और सी एक्यूट होंगे, ना कि ऑब्ट्यूज होंगे। तो यहाँ ऑब्ट्यूज होगा, कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 15B, एक्सरसाइज 15B का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन alongside find the measure of angle ACD। ये फिगर है ABC, C प्रोड्यूस टू D, एंगल A 75 डिग्री, 45 डिग्री, और ए एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल ACD। तो वी नो दैट इन दिस ट्रायंगल ABC एनी साइड को जब हम प्रोड्यूस्ड करते हैं, यानी BC को हम D तक प्रोड्यूस्ड किए, तो एंगल ACD जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो यहाँ भी ये एक्सटीरियर एंगल कहलाया। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल BAC अब प्लस एंगल ABC, यानी फॉर्मूला हो गया एक्सटीरियर एंगल का। तो इसमें भी हम निकालेंगे एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, यानी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो ये हो गया 45 BAC 75 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री। तो एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये हो गया 120 डिग्री। सेकेंड थर्ड इसी तरह से बन जाएगा। एक 4 नंबर देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle. जस्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में BC को D तक मिलाया गया, एक्सटीरियर एंगल बना 110 डिग्री है, और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल का रेशियो 2:3 है। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। यहां पर हम मान लेंगे लेट
रेशियो बी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी ए सी बराबर 2x, एंगल ए बी सी बराबर 3x। अब ये जानते हैं एक्सटीरियल एंगल, फॉर्मूला होता है एक्सटीरियल एंगल बन गया ए सी डी बराबर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो फिर इसी टाइप का था ए सी डी बराबर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ये हो गया 110 डिग्री, ये हो गया 3x प्लस 2x, 5x इक्वल टू 110 डिग्री 22 डिग्री, x इक्वल टू 22 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू 2 इंटू 22 डिग्री 44 डिग्री, और एंगल ए बी सी इक्वल टू 3 इंटू 22 डिग्री इक्वल टू 66। आंसर हो गया। इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का है। एक्सटीरियल एंगल दिया हुआ, अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है इक्वल है, तो इसी तरह से बन जाएगा। फॉर जैसा एक 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर गिवन एलोंग साइड फाइंड, इसमें फिगर दिया हुआ है, ए बी सी और डी और ये है ई। 45 डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है और 40 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें फर्स्ट निकालना है एंगल, फाइंड एंगल ACD, और सेकेंड निकालना है एंगल AED। तो इसमें सबसे पहले ACD, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। सॉल्व इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल हम देख रहे हैं, इन विच साइड BC प्रोड्यूस टू पॉइंट D। तो एक्सटीरियर एंगल ACD, ये बना एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का डिफिनेशन जो फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, ACD बराबर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो BAC प्लस एंगल ABC। तो BAC 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, यानी एंगल ACD बराबर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है AED। अब ए एक्सटीरियर यहां भी बन रहा है, लेकिन ये इस ट्रायंगल के लिए आया। तो अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल CDE में। तो यहाँ CD प्रोड्यूस किया गया CE को A तक, तो ये एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन गया AED। तो एंगल AED बराबर फिर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये आया था 70 डिग्री
तो हो गया एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई। यहाँ हो जाएगा ई सी डी 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ए ई डी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, 7, 8 इसी टाइप से है, बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स।